Hello class, today our next topic is the subset. So today we will study about the subsets. So as its name define, subset is a subpart of a set. That means if we are having a set is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, and there is another set which is B equals to only 1 and 2, then we will say that B is subset of A. This sign, this जो ये इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली जो U बना रखा ना, this represent the subset sign. It says that B is subset of A because all the elements in B are also in A, or you can say that B is formed from the A. जो B set वो किससे बना है, वो A set से ही बना है. Then we will say that B is subset of A. So चलो मान लिया कोई एक और एलिमेंट एक सबसेट हो रहा है C which is equals to 2, 3, 4 and 5. Here also all the elements of C are in set A. That means C is also subset of A. Is this clear? If you are having D and another element which is equals to 5, 5 means D does not contain any element. It also means that D is subset of A because जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसके अंदर A के अंदर भी तो ऐसा हो सकता है. देखो A के अंदर 1, 2, 3, 4 and 5 है, लेकिन अंदर A के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट ना होता तब क्या होता है, A के अंदर 5 होता. मीन्स A के अंदर 5 भी कंटेंट है एंड D इज इक्वल टू 5. सो वी विल से दैट D इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A. Is this clear? If we are having E as another set which is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. So here we will say that A is equals to E. A किसके इक्वल है, E के इक्वल है because all the elements which are in A are also in B. So this is how we will represent that A is equals to E. Is this clear? और इसको रिप्रेजेंट करने का एक वे और भी है that if you prove that any elements, if you prove that any element, let A is any element which belongs to B. हमने बोल दिया कि A कोई भी एलिमेंट है जो B से बिलोंग करता है एंड वी शो दैट A आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल A. मीन्स हम लेके ये चले थे एंड वी प्रूव दैट A बिलोंग्स टू A. मीन्स B के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ऑल दीज एलिमेंट्स आर आल्सो इन A. और यही तो डेफिनेशन है सबसेट की, दैट इफ वी आर हैविंग एलिमेंट इन B एंड इट इज आल्सो इन A, देन वी विल से दैट B इज सबसेट ऑफ A. So this is how we will prove the questions. Okay. Now look, let we are having a set A. This is our example number 9 at the page number 10. A set is given. First set is 5. Second is A which is given equal to 1 and 3. This is example number 9. So and the B set is 1, 5 and 9. Whereas the C is 1, 3, 5, 7 and 9, and we have to fill in the blank. So first is this blank. So from here you can see that 5 और इधर है B. So we will say that 5 is subset of B because 5 जो सेट है वो हर एक सेट का सबसेट है. तो 5 is subset of every set. Is that clear? 5 हर एक एलिमेंट का क्या होगा, सबसेट होगा. आफ्टर दैट द सेकंड इज A एंड B. अब नाउ वी हैव टू टेल द रिलेशन बिटवीन A एंड B. नाउ लुक, A के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 एंड 3. B के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1, 5 एंड 9. सो B के बारे में क्या बोलोगे, B के बारे में हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती कि इसका सबसेट है. सो वी विल से दैट A is not subset of B because A contains the element as 3. इसके अंदर 3 है बट B के अंदर कहीं पर भी 3 नहीं है. दैट मीन्स जो A है वो B से मिलके नहीं बना. सबसेट का क्या मतलब होता है, इसके कुछ एलिमेंट उठाए और दूसरे सेट के अंदर डाल दिए, वही होता है उसका सबसेट. बट A के जो 3 एलिमेंट होते हैं B के अंदर है ही नहीं, मीन्स जो A सेट है वो B से नहीं बना. ठीक है. सो वी विल से दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ B. नाउ द थर्ड वन इज फॉर द A एंड C. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C. देखो चेक करो, A
के अंदर 1 3 है, इसके अंदर भी 1 3 है। दैट मीन्स जो ए सेट है वो किससे बना है? दिस ए सेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सी सेट, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ C. Now the last one is the relation between B and C. So look, B के अंदर देखो, C के अंदर देखो, 1 5 9. Here also we are having 1 5 and 9. That means जो B set है वो किससे मिला बना है? C से फॉर्म हुआ. That means B is subset of A. Is this clear? So this is how you have to do the questions. Now the next example is, let A is equal to this, B is equal to this. Okay, example number 10, which is, if we are having A is equals to A, E, I, O and U, and B is equals to A, B, C, D, and question is A is subset of B. ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, चेक करो, देखो A इसके अंदर है, A B के अंदर भी है, E इसमें है, बट E does not belongs to this. So यहाँ पर तुम लिख सकते हो E belongs to A, but E does not belongs to B, which means A is not subset of B. ठीक है, सिंपल सा वैसे यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स. कोई भी जो रियल नंबर होगा उसके सबसेट क्या क्या होंगे? ठीक है, ये तो चलो सिंपल सी बात है. तो अगर किसी को सबसेट समझ आ गया वो इसको इजीली समझ सकता है. जैसे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एक होल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा. नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे होल नंबर के अंदर हो गए. दैट मीन्स नेचुरल नंबर का सेट इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर. और यू कैन से दैट नेचुरल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स. वो सबसेट इंटीजर्स का भी होगा. नेचुरल नंबर्स रियल नंबर का भी सबसेट होगा. वो तो अपने पास जैसे कि सबसेट समझ आए उसी के अकॉर्डिंग यू कैन डिफाइन दैम. नाउ let's study the intervals. अब intervals होते हैं, देखो कोई भी नंबर लाइन है, here we are having 0, here we are having 1, here we are having 2 या -1 और here we have -2. So देखो यहाँ पर चार केस होंगे टोटल. चार केस क्या क्या है कि हमने -2 को तो इन्वॉल्व नहीं किया, मीन्स -2 को इन्वॉल्व नहीं किया. दैट मीन्स उस तरफ क्या है, एक ओपन सर्कल है और 2 को भी इन्वॉल्व नहीं किया. इज दिस क्लियर? अगर दोनों तरफ ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का वे ओपन सर्कल मीन्स -2 को इन्वॉल्व नहीं करें एंड वी आर नॉट इन्वॉल्विंग 2, देन वी विल राइट डाउन दिस लाइक दिस. कैसे लिखोगे इसको? सिंपली -2 से लेके 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स. इज दिस क्लियर? इसका मतलब है -2 से 2 के बीच के सारे एलिमेंट लेने, मीन -1 0 1 1.2 1.3 -1.4 सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं. बट वी डोंट हैव टू काउंट -2 एंड 2. ये है ओपन ब्रैकेट. जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट. इज दिस क्लियर? लेकिन जैसे ही मैंने ये कर दिया इस टाइप का क्लोज ब्रैकेट, इसको बोला जाएगा क्लोज ब्रैकेट. दैट मीन्स जो -2 है उसको हमें इंक्लूड करना है. दैट मीन्स वी हैव टू इंक्लूड -2 को डार्क कर दें. दैट मीन्स -2 को इंक्लूड करेंगे. इधर क्या आ गया? क्लोज ब्रैकेट एंड हेयर वी आर हैविंग ओपन ब्रैकेट. दैट मीन्स ये जो इंटरवल है दिस विल डिफाइन -2 से स्टार्टिंग कर दो और 1.9999 वहाँ तक चले जाओ. बट यू डोंट हैव टू इंक्लूड द 2 को इंक्लूड नहीं करे, उससे पहले के सारे एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हो. इफ़ यू आर हैविंग लाइक दिस, इस टाइप का कोई भी एलिमेंट है, इस टाइप का कोई भी इंटरवल, इसका मतलब है -2 को इंक्लूड नहीं करना है बट वी हैव टू इंक्लूड द 2. इज दिस क्लियर? और अगर दोनों तरफ क्लोज है, इफ यू आर हैविंग लाइक दिस, दैट मीन्स -2 से 2 इंक्लूड करने हैं और -2 से 2 के बीच में जितने भी इंटरवल है सारे के सारे क्या होंगे? जितने भी पॉइंट है, ये -1.5 भी, -0.5 भी, 0.5 पॉइंट वाले भी, इसका मतलब पॉइंट वाले भी जितने भी पॉइंट इसके बीच में लाई कर सकते हैं, -2 से 2 के बीच में जो कुछ भी लाई कर सकता है, ये एक इंटरवल को डिफाइन करता है. दिस इज द इंटरवल. जैसे इसको क्या लिखा? ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिखा या फिर बड़े ब्रैकेट में लिखा. दिस विल डिफाइन द इंटरवल. छोटे ब्रैकेट का मतलब है दैट जो भी छोटे ब्रैकेट के साइड में लिखा इन दोनों को काउंट नहीं करना है, सिंपल इसके बीच वाले काउंट करने. जो भी यहाँ पर बीच में होंगे ना इन दोनों के, सिंपल वो काउंट करने हैं. क्लोज ब्रैकेट मीन्स इन दोनों को काउंट करना, -2 और 2 को भी, और इसके बीच के एलिमेंट तो काउंट होंगे ही होंगे. ठीक है? नाउ लेट्स स्टडी द पावर सेट. व्हाट इज ए पावर सेट? सो पावर सेट क्या होगा? If we are having a set A is equals to 1, 2 and 3. ये कोई भी एक सेट है 1, 2 and 3. So 1, 2, 3
इज इक्वल्स टू ए। अब जो ये ए है, ए का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट कुछ भी नहीं होता, पहले तो इसके चेक करो जितने भी इसके सबसेट हैं। तो हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल? सबसे पहले मैंने बताया था कि 5 जो होगा वो सभी का सबसेट होगा, तो फर्स्ट सबसेट इज 5। आफ्टर दैट लुक 1 जो है 1 कैन आल्सो बी सबसेट। देखो यहाँ पर हम ये वाले ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 के बीच में जितने एलिमेंट है वो सारे लेने हैं, या फिर 2 3 के बीच में एलिमेंट है वो सभी लेने हैं। ये करली ब्रैकेट है, इनका मतलब है ये एलिमेंट मीन सिंपल 1 2 और 3 ही उस सेट के अंदर है। अगर मैंने ये लिख दिया 1 और 2, इसका मतलब है इनके बीच में 1.1 1.2 1.3 जो कुछ भी 1 और 2 के बीच में एलिमेंट है वो सारे काउंट होंगे। इसी वजह से ब्रैकेट्स का यूज ध्यान से करना। सो फर्स्ट सबसेट, इसका सबसेट कौन कौन से होंगे? 1 भी हो सकता है, इट्स सबसेट कैन बी 2, इट्स सबसेट कैन बी 3। अब तो एक एक एलिमेंट लिया है, लेकिन सबसेट तो ये भी हो सकते हैं ना, 1 2 भी इसका सबसेट है, 2 3 इज आल्सो सबसेट एंड 1 3 इज आल्सो सबसेट। ये तो सबसेट है। बट अगर ये खुद हो 1 2 3 1 2 3 इसका सबसेट है या फिर नहीं है? 1 2 3 भी इसका सबसेट है, बिकॉज हमने कंडीशन क्या बोली थी? जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है, देन वी विल से दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। अब देखो 1 चेक किया, 1 इसके अंदर है, 2 चेक किया, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी क्या है? इसके अंदर है। दैट मीन्स टोटल कितने सबसेट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट जिसके अंदर एलिमेंट हो n, जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज टू पावर n एलिमेंट होंगे। इज दिस क्लियर? और यू कैन से दैट अगर कोई भी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, उसके सबसेट कितने होंगे? देयर विल बी 2 रेज टू पावर n सबसेट। लुक हियर वी आर हैविंग टोटल 3 एलिमेंट्स। a के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। मीन्स वी विल से दैट नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ a का मतलब है n के a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। n a का मतलब होता है number of elements in A which is equals to 3. So number of elements of subset of A. So A के कितने सबसेट होंगे? A के सबसेट होंगे 2 raised to power 3 which is equals to 8. और यहाँ से चेक करो ये भी कितने हैं? 8 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो अगर तुम्हें लिखना पावर सेट ऑफ A मीन्स P ऑफ A, इसका मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू, एक बड़ा सेट फॉर्म करो और उसके अंदर क्या करो? जितने भी छोटे सेट हैं उन सभी को लिख दो। एक बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर ये सारे के सारे सेट जो भी हमने ऊपर लिख रखे हैं, ऐसे चलते हुए गए यहाँ तक, सारे के सारे सेट इसके अंदर लिख दो एंड यू विल गेट द पावर सेट। ये होता है पावर सेट मीन्स पी ऑफ ए। इसके अंदर ये जितने भी इसके सबसेट हैं उन सारे सभी को लिख दो, देन वी विल गेट द पावर सेट। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद आता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट देखो 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, इन सभी के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? दिस इज द यूनिवर्सल सेट। क्योंकि ये सारे के सारे किसके सबसेट हैं? इसके सबसेट हैं। ये तो इसके होंगे पावर सेट, लेकिन इसको अगर वापस ऊपर की तरफ देखो, देन ए इज द यूनिवर्सल सेट फॉर 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। यूनिवर्सल सेट का मीन जो इन सभी से बड़ा हो उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट है। और इसके जो एलिमेंट्स, इसके मीन्स सेट्स को एक साथ लिख देंगे तो हम बोल देंगे दिस इज द पावर सेट। सो सभी बच्चों को पहले एग्जाम्पल रीड करने हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.3, which the first question is mark correct statement by filling in the symbol subset or not subset। ये तो सिंपल है, सेट बिल्डर फॉर्म की होना है, यू कैन डू इट इजीली। देखो चलो फर्स्ट मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। द फर्स्ट इज इस टाइप से है 2 3 4 एंड बीच में स्पेस देकर 1 2 3 4 एंड 5। यू हैव टू टेल दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस और नॉट। ये इसका सबसेट है तो बीच में क्या लगाना है? सबसेट का साइन। नेक्स्ट वाला खुद कर लोगे। थर्ड देखो, द थर्ड इज x such that x is a student of class 11th of your school। ठीक है, ये क्या है? x is a student of your class। अब अपनी क्लास में कौन कौन है? शिवम, पारुल एंड अंश। ये तो 12th क्लास अपने पास 11th क्लास में है। और स्पेस देखिए आगे क्या लिख रखा है? स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल।
स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल का मतलब स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, स्कूल के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं। दैट मीन्स ये जो शिवम, पारुल और अंश हैं ये इसका क्या है, सबसेट है। बिकॉज स्कूल के अंदर जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे ये भी हैं। मीन्स ये सारे के सारे इसी स्कूल में तो पढ़ते हैं, नाम बस बात अलग है। ये अपने पास +1 क्लास के बच्चे हैं और ये क्या स्कूल के बच्चे हैं। जो भी +1 क्लास का बच्चा होगा वो स्कूल का बच्चा तो होगा ही होगा। सो बस सिंपल सा ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, second question is we have to examine the true or false। ट्रू और फॉल्स करना है तो सिंपल सा कर सकते हो, जैसे कि लास्ट वाला है A belongs to A, B and C। this sign represent the belongs to। belongs to means A जो है वो किसके अंदर से है, इसके अंदर से निकला है। इज दिस क्लियर। जैसे कि अगर हम बोल दे कि जो अपनी +1 क्लास है MS सरस्वती स्कूल की, +1 जो क्लास है वो स्कूल से बिलोंग करती है, वो तो करेगी ही। अगर स्कूल ही MS सरस्वती स्कूल है तो उसकी जो क्लास होगी वो भी तो स्कूल से बिलोंग करेगी, है ना। तो सिंपल सा बस ये क्वेश्चन है। अगर हम बोल दे कि जो +1 क्लास है उसका जो उनके जो प्रिंसिपल है वो ज्योति मैम है, प्रिंसिपल जो है ज्योति मैम है, और जो स्कूल है स्कूल की प्रिंसिपल क्या है, ज्योति मैम है। तो जो चलो ठीक है, ज्योति मैम इसकी प्रिंसिपल नहीं बताई, सिंपल सी ये बात बोल दी कि जो +1 क्लास है वो स्कूल की MS सरस्वती स्कूल की +1 क्लास है और स्कूल की जो प्रिंसिपल वो कौन है, ज्योति मैम है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो +1 क्लास है उसकी भी प्रिंसिपल कौन होगी, ज्योति मैम ही होगी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर ये बिल्कुल इससे निकला है, अगर कोई भी ABC सेट है, A जो है वो इसी से निकला है तो उससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर ये A की जगह D होता, A की जगह क्या होता, D होता, तब हम बोलते हैं कि जो D है वो ABC से बिलोंग नहीं करता। इज दिस क्लियर। इसी टाइप से इस क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज A इज गिवन इक्वल टू और करेक्ट और इनकरेक्ट बताना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना, देखो 3 और 4 अलग से ब्रैकेट में, मीन्स जो A के एलिमेंट है, A के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A के एलिमेंट्स होंगे 1, 2 और ये 3, 4 इकट्ठा एक ही एलिमेंट है। ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये इकट्ठा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में 3, 4 ब्रैकेट के अंदर है और सबसेट ऑफ A, मीन्स ये अपने पास ठीक है। बिकॉज 3, 4 एक इकट्ठा एलिमेंट, इसको एक ही एलिमेंट मानना है, दो अलग अलग एलिमेंट नहीं मानने। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछे 3 इज सबसेट ऑफ A, सो ये चीज़ गलत होगी, बिकॉज 3 तो इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा। 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 थोड़ी ना बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कौन कर रहा है, 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ना। 3 और 4 वो भी ब्रैकेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स ये चीज़ इससे बिलोंग कर रही है, बट 3 से बिलोंग नहीं करता और ना ही 4 A से बिलोंग करता है। इज दिस क्लियर। बट 3, 4 ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो उससे बिलोंग करेगी। अब जो 5 है वो भी क्या होगा, A का सबसेट होगा। अब अपना चेक कर लेना कौन कौन सा इसका सबसेट है या फिर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो भी सेट गिवन है उसके क्या लिखने हैं, वी हैव टू राइट डाउन द सबसेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज A के कौन कौन से सबसेट होंगे, A के अंदर एलिमेंट, मींस मान लिया ये सबसेट सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट है, और 1 एलिमेंट के सबसेट क्या होंगे, 2⁻1 होंगे। दैट मींस कितने एलिमेंट सबसेट होंगे, 2 होंगे। सो 2 कौन कौन से इसके जो सबसेट्स ऑफ A, सबसेट्स ऑफ A कौन कौन सा होगा, एक तो 5 जो कि सभी का है, एंड सेकेंड इज इटसेल्फ A। नाउ द सेकेंड पार्ट इज AB के लिख सकते हो, 1, 2, 3 के लिख सकते हो, लास्ट में 5 जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 5 का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। और 0 एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो पावर सेट होगा, मीन्स उसके जो सबसेट होंगे उसके अंदर कितने सेट होंगे, 2⁻0, 2⁻0 इज इक्वल टू 1। सो सबसेट्स ऑफ 5 these will be equals to only 5। सिर्फ 5 क्यों होगा, बिकॉज 5 का सबसेट हो सकता है, जैसे कि जो 1, 2, 3 है, A जो है वो A का सबसेट है, उसी टाइप से 5 जो है वो 5 का सबसेट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA के अंदर, मीन्स पावर सेट ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इफ A इज इक्वल्स टू 5, मीन्स A इज इक्वल टू 5 है तो
P ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, टोटल कितने होंगे, सिंपल सा देखो 5 सिंपल 5 लिख रखा है। अगर 5 ब्रैकेट के अंदर होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम क्या है, 5 नाम है। ठीक है, इसके जो सबसेट बनाओगे सबसेट क्या फॉर्म होंगे, 5 एंड 5 ब्रैकेट के अंदर। बात समझ रहे हो, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया इसका मतलब वो एक खाली सेट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर वो ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब है ए एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट के कितने पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 1 एलिमेंट, बिकॉज 2 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, वी हैव टू राइट डाउन द इंटरवल्स। x ये साइन होता है सच दैट का, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मीन्स x जो है वो सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, सच दैट ये क्या -4x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या -4 से तो बड़ा है, मीन्स -4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब -4 की तरफ होगा ओपन ब्रैकेट और 6 के क्या है, इक्वल भी है, सो दैट मीन्स इधर होगा क्लोज ब्रैकेट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द इंटरवल। अब देखो कोई इंटरवल ये दे रखा है -12 से तो बड़ा है और -10 से छोटा है, सो इंटरवल क्या होगा, इट्स इंटरवल भी -12 -10, बिकॉज यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन गिवन है, इक्वल गिवन नहीं है, दैट मीन्स दोनों तरफ क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टाइप का, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है मीन्स दोनों तरफ इक्वल भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स x 3 के इक्वल भी है। अगर 3 के इक्वल है तो x क्या आएगा, 3 भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, मीन जो x है वो किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 3 एंड 4, मीन्स जहाँ पर हम 3 को भी इंक्लूड करेंगे एंड वी विल आल्सो इंक्लूड द 4। ठीक है, अब जो नीचे 7th क्वेश्चन है, इसको देखो 7th क्वेश्चन में ये वाली चीज गिवन है एंड वी हैव टू राइट डाउन दिस, ये वाली चीज लिखनी है। सो सिंपल सा देखो, नेक्स्ट इज -30 को सेट बिल्डर फॉर्म किस टाइप से लिखोगे, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म विल बी x such that x belongs to r and x जो है वो -3 से सिर्फ छोटा है एंड लेस देन 0। बस ये चीज करनी है, -3 से क्या है, छोटा बड़ा है और 0 से क्या छोटा। अगर इस तरफ क्लोज ब्रैकेट होता, इफ यू आर हैविंग -3 क्लोज ब्रैकेट तो क्या कर देते, इसको इक्वल टू बना देते, और अगर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है तो क्या कर दे, दोनों को इक्वल लिख देते। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो इसी टाइप से होंगे। नाउ द 8th क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे रिटर्न है उन सभी के लिए हम यूनिवर्सल सेट फॉर्म करना, मीन्स ये सारे जिसके सबसेट है, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। देखो जो भी राइट ट्रायंगल्स है वो हमें पता है इस टाइप की होंगी, मीन्स जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो सारे की सारी एक ट्रायंगल तो है ही, मीन्स वी कैन से दैट जो भी अपने पास राइट एंगल होगी वो एक ट्रायंगल होगी। सो जो राइट एंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके लिए यूनिवर्सल सेट, इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ द ट्रायंगल्स। सेट ऑफ द ट्रायंगल जो है वो इसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और आए जिसके अंदर सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल है, देन उसको भी तुम लिख सकते हो। अब देखो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेकंड इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब देखो जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं वो सारी की सारी ट्रायंगल तो हैं ही, तो इसको भी हम बोल सकते हैं जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दैट विल बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट A इज इक्वल टू 135, ए कोई भी सेट गिवन है 135, 9th क्वेश्चन, A इज इक्वल्स टू 135, B is equals to 2, 4 and 6 and C is equals to 0, 2, 4, 6 and 8. Which of the following may be considered as universal set S for all of the 3 set? Means इन तीनों सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा ये बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. सेकेंड ऑप्शन इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 0, 1, 2 अप टू 10 है, फोर्थ ऑप्शन इज 1, 2, 3 अप टू 8 है। अब देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम चूज करें मीन्स
वो सेट जिसके अंदर ये सारे के सारे सेट। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, देखो ये जो बड़ा सेट है इसको हमने बोलते हैं ये अपना जो स्क्वायर है ये अपना है यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ही क्या है, ए बी सी, मीन्स यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट होने चाहिए। अब चेक करो अंदर सेट होने का क्या मतलब है, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए। देखो 1 3 5 इसके अंदर 1 3 5 है, ठीक है। 2 4 6 भी है, बट 2 4 6 8 इस सेट के अंदर नहीं है। मीन जो 8 है वो बाहर की तरफ है, 8 बाहर की तरफ है, 8 इस यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं है। मीन जो फर्स्ट है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 या 5 तो कुछ खाली होता है, 5 तो किसी का यूनिवर्सल सेट होता ही नहीं। उसके बाद आता है 0 1 2 3 अप टू 10 तक चेक करो, मीन्स 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट है 8 तक होनी चाहिए सारे के सारे, दैट मीन्स दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ये क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 बट यहाँ पर 0 नहीं है, दैट मीन्स 0 सेट के अंदर नहीं है, सो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सो दिस इज योर आंसर। मीन्स यूनिवर्सल सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी उसके सबसेट हैं वो सारे उसके अंदर कंटेन हो। सो योर होमवर्क इज टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 1.3।